because wonders are done by great people. An average intelligent person has to do only one thing. He or she has to put in consistent hard work with honesty and purpose. Good purpose and good hard work, and with honesty is all that you need. The real secret of progress lies in, to my mind, incremental change. We are not prophets. We are not big visionaries like Mao Zedong. We are ordinary people. I'm talking about myself. Okay? So you are, inshallah, going to do much better than what we have done. This is how GC University and Pakistan is going to progress. Before the last thing that I do, of course not the least, I have really the pleasure to congratulate each one of you who have done so well while you were here, have excelled in sports, have excelled in academic activities and co-curricular activities. So keep it up. Now, I mentioned in passing the name of Mr. Arshad Bukhari, and I invited him on my behalf to share this evening with you. And if you allow, I am going to request you to come here at the rostrum and share what he experienced when he was living here, not just as an ordinary resident, but as someone who was a very special resident. I am not going to tell you, he is going to tell you. I'm sure you're going to enjoy it. Mr. Bukhari, would you please come forward? Assalamu alaikum. I don't know whether I should talk in English, Urdu or Punjabi. About 41 years ago, when I used to live in room number 2, and then moved to room number 1, and I was asked by Dr. Nazir Ahmed to be the prefect of this hospital. And those children at that time, I'm really delighted to see all of you so well-mannered. You are special children, and I think I'll applaud all of you. And you are much better and confident performers than those students of yesterday. Although they have achieved they are judges, they are law secretaries is resident of this hospital. And I mentioned that when he came as a first-year student, he used to live on one of those dormitories, and one of the students, he threw a water on him, full of cold water, as a first-year fool. And he came rushing to my, Sangani or somebody came and said, sir, he want to go home. And he said, mujhe ghar jana, maine yahan nahi rehna. Mujhe aap jaane dijiye, mere abbu ko bula de. Maine kaha, kya hua? Bolo si. Kehte ji ke ye dekhe kapde mein. Main uske kamre mein gaya to ghade ka ghada pura niche girunga. वो ऊपर से मुझसे फेंका दिया. मैंने कहा अच्छा. मैंने बुलाया, मैंने कहा कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन की कि भाई कौन था. वो मुझे पता चला कि कुछ सेकंड ईयर के लड़के थे, फर्स्ट ईयर पूरी की जुनून में ज़्यादा ही बढ़ गए थे. मैंने उन्हें बुलाया तो मैंने उस लड़के के सामने उनको सबको मुर्गा बना दिया. ये कभी आपको अभी मेरा कोई पुराना मुलाजिम होगा वो आपको बता देगा. मैंने उसको सबको मुर्गा बनाया, उस लड़के को उनके ऊपर बिठा दिया. तो वो जो है ना वो आजकल लॉ सेक्रेटरी है जो उनके ऊपर बैठा हुआ है, फारूक शेख वाले. उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी खुद भी यहाँ पे रहा. और उसके एक और केस बड़ा शानदार है मेरा ख्याल है. तो आपने सुना हो कि प्लॉटिंग पेपर करके लोग कहते थे कि अपने वालिद को लिखते थे कि जो प्लॉटिंग की पेपर में खरीदना आपने ये पैसे भेजिए. हमारे वक्त में उस वक्त एक क्वाड्रेंगुलर था, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ये आई वाज द लास्ट चीफ प्रीफेक्ट ऑफ क्वाड्रेंगुलर एंड द फर्स्ट प्रीफेक्ट ऑफ चीफ प्रीफेक्ट ऑफ इकबाल हॉस्पिटल. It was a rare opportunity, just like Dr. Khalid Aftab, last principal of Government College Lahore,
and the first chancellor of Government College University. I think we share that one. Okay, and उसने अपने वालिद का वक्त जनाब किबला वालिद साहब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैंने कहा पता क्या है बेटा, कहाँ है? तो वो कहते जी वो कमरे में नहीं। मैंने कहा जी आप तशरीफ रखिए। तो आपको ये खत दिखा रहे, तो मैं खत ले गया। मैंने खत में जब पढ़ा तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप तशरीफ रखिए, 200 रुपये उनको वापस कर दिए। मैंने कहा वो माफ़ करा दूंगा, सिक्योरिटी उसकी माफ़ करा दूंगा। और मैंने उसके बरखुरदार के इंतजार करना शुरू कर दिया। वो लेट नाइट पिक्चर देखने गए, वैसे 3-4 लड़के। मालूम है कि मैं ऊपर चढ़ के मैं चढ़ गया, मुझे पता था वो पाइप से ऊपर चढ़ना है। क्योंकि मेरे नियम से निचल के लिहाज से प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी साहब, जिनके नाम से एडिटोरियम, उन्होंने ये रवायत कायम की थी कि पाइप से कैसे चढ़ना। और मेरे से नहीं जाएगा रवायत को तोड़ दी। मैंने 11:30 बजे तक इंतजार किया। वो शहजादी ऊपर आए, मैंने अक्सर मजलूम को वहाँ से लाया, नीचे लाया और वहाँ ला के उनका मुर्गा बना दिया। मैं से मुर्गा मैंने फिर उसको 1000 नाक की लकीरें को। शुक्र कीजिए मैं आपको प्रीफेक्ट नहीं हूँ। और मैंने उन्हें उससे कहा, मैंने कहा अपने बाप को तुमने क्या लिखा था? वो घबरा गया, कहते जी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई खत उसके सामने का पढ़ो दोबारा। मैंने उससे 10 दफा खत पढ़वाया। मैंने कहा तुम क्या क्या लिखा था? कहते जी माफ़ कर देंगे। मैं कहती मैं माफ़ी, तुम अपने बाप से माफ़ी मांगो। और मैंने उनके पास वापस भेज दिया। 200 रुपये जो तुम मंगवाए थे ना, तो मैंने वापस भेज दिया। अब बताओ कि तुमने क्या करना। उसने माफ़ी नामा लिखवाया तो बाप से मैंने आपको गलत है। और मैंने वही चीज़ जिस तरह आपका आज का फंक्शन है जो अपना फेयरवेल पार्टी टू सेकेंड ईयर, तो मैंने वही उसका खत यहाँ पे आके सबको पढ़ के सुना दिया। ताकि आइंदा आने वाला कोई जरूरत न कर सके। मुझे मालूम है उसके बाद कितनों ने कोशिश की होगी, क्योंकि वालिदैन को धोखा देना जो है ना एक आम रवायत है। ब्लॉटिंग पेपर से लेकर सिक्योरिटी तक है। उम्मीद है कि आप में से किसी ने ऐसी हरकत नहीं की होगी। जी फरमाइए। आपने निकलवाई? डॉक्टर साहब साइन कर देगा। तो इस तरह ये और भी कई वाक़यात थे मेरे अपने के इस तरह लग रहा है मैं क्या वो उसी दौर में बैठा हूँ। लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई है, खास तौर पर दोनों हजरात से जिन्होंने कंडक्ट किया, आई अपलॉड देम। ये स्पेशल ब्रीड है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। और मैं आपको मेजर साहब को भी आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इतनी ये लड़के जैसा सुलझे हुए हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। Now we can go for dinner. सब आहिस्ता से चल पड़े खाने की। आइए, आइए, आइए,